आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपको? हाँ जी। आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज। जी ठीक। सर नोट शेयर कर दें जरा काइंडली, स्क्रीन शेयर कर। कर दिए हैं, शेयर कर दिए। दर्द खांदा है। ऑलरेडी। दर्द खांदा है। जिनको दावा था मोहब्बत में मसीहाई था, मिल गए नोट? उनकी झोली में जफाओं के सिवा। दर्द खांदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट जो पढ़ा था, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेवियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये मुझे कोई कंफर्म कर सकता है कि कहाँ तक हमने पढ़ा हुआ है? एनी स्टूडेंट? हेलो, मुझे कोई बता सकता है कहाँ तक पढ़ा था? हेलो, अभी आपकी आवाज ही नहीं आ रही। आप बोल रहे हैं सही सर, आवाज नहीं आ रही सर। यार पहले तो आवाज आ रही थी सबको, अब आ रही सर है? अब नहीं आ रही। अच्छा, नहीं सर। तो आपको कैसे हेलो। पता दूसरों का हेलो। हाँ जी। हाँ जी, हेलो। मियां हसनैन हाँ साहब। ये- जी जी सर। हाँ जी। सर लास्ट लेक्चर तो मेरे पास नोट नहीं है, क्योंकि रीजनल एंड एपीरियड जुरिसडिक्शन के बारे में तो पढ़ रहे थे। नहीं, तो ये सारा एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, सुप्रीम कोर्ट एट वर्क और रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये पढ़ नहीं लिया हमने? हाँ, ये तो पढ़ लिया सर, ये पढ़ लिया। ये अच्छा। मेरे पास नोट है। एज ए प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टर ऑफ फेडरेशन। सर वो एडवाइजरी वाला हो गया वो। उससे आगे भी हो गया है, सुप्रीम कोर्ट एट वर्क। वो सर वो सर पिछले आधा पड़ा लेक्चर था। में। हाँ जी। हेलो। सर वो थोड़ा सा शुरू किया था सर, वो सुप्रीम कोर्ट एडवर्क हुआ था। अच्छा, चले कर लेते हैं शुरुआत।
The Supreme Court at work. Today our topic of discussion is Supreme Court at work. The Supreme Court holds one regular session uh, annually. It commences on the first Monday of October and ends about the middle of June. The Chief Justice can convene special sessions of the court. If urgently required, it conducts hearings of cases for a fortnight. It meets on Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. On Saturdays, justices confer among themselves and register their opinion. On Monday, judgments are delivered in public. Every fortnight of hearing is followed by a fortnight of recess. During this period, judges study and write opinions. For a session, quorum of 6 judges is required. Judges arrive at decisions by a majority vote. All decisions and opinions of the Supreme Court are published in the United States. Reports for record and guidance of the legal profession and general public. तो इसमें जो बताया गया है सुप्रीम कोर्ट की जो डे टू डे प्रोसीडिंग है वो कैसे होंगी कि सुप्रीम कोर्ट एनुअली एक एटलीस्ट सेशन इसका हेल्ड करेगी सुप्रीम कोर्ट और वो जो सेशन है shall be called upon by the Chief Justice of Supreme Court. इसके अलावा the Chief Justice can convene special sessions if urgently required, and the Supreme Court conducts hearings fortnightly. It means for every 14 days, Supreme Court meet for hearings of the cases for 14 days in 1 month. And on it meets on Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. For the purposes of hearing, the Supreme Court meets on Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday, 4 days of a week. For the purposes of hearing of the cases, Supreme Court meets on Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. It means 4 days of a week. And on Saturdays, Supreme Court justices meet, yeah, you can say they held a meeting to register their opinions and discuss about the cases they heard in last 4 days from Tuesday to Friday. On Monday, judgments are delivered in public. So on Monday, the Chief Justice of the Supreme Court deliver or declare or announce the judgments of the cases heard and decided in last week. And these judgments shall be declared or announced in public, not in chambers of the judges or in closed rooms. Every fortnight of hearing is followed by a fortnight of recess. Every 14 days of court hearing followed by a 14 days of recess, and during the recess period the judges study and write their opinions. For a session of quorum of 6 judges is required when a court, you can say when the Supreme Court meets to conduct the hearings of cases. There must be 6 judges in that sitting. If the judges are less than 6, the court shall adjourn for next date of hearing. Judges arrive at decision by a majority vote. As you know, in Supreme Court there are 9 judges, including the Chief Justice of Supreme Court.
So the decisions of the court after completion of the hearing of a case, the court arrived at decision by a majority vote. It means the opinion of 5 judges prevails over the opinion of 4 judges. So it means if the 5 judges on one side are on one side and the 4 judges are on another side, the opinion of 5 judges shall be the judgment of the case, and the opinions of the 4 judges shall also be write down in the judgment as dissenting note. You can say note, do ikhtilafi note. All decisions of and opinions of the Supreme Court are published in the United States Report for record and guidance of the legal profession and general public. So the all decisions made by the Supreme Court and the dissenting opinions of the judges uh, are published in United States Report for the guidance of the legal professionals like the judges of lower courts, the lawyers, and professors of law colleges and law students in United States of America and general public. Role of the Supreme Court: a mere description of the jurisdiction of the Supreme Court cannot give a correct picture on the role it plays in the American system. According to this, no feature in the government of USA has awakened so much curiosity in the European mind, caused so much discussion, received so much admiration, being more frequently misunderstood than the duties assigned to the Supreme Court and the functions it discharges in guarding the arc of the Constitution. As we discussed earlier, the appellate jurisdiction and the original jurisdiction of the Supreme Court, the writer tells us here that the mere the mere description of original jurisdiction and appellate jurisdiction of the Supreme Court cannot uh, give a correct picture of the Supreme Court and its role in the American system. Uh, the author, jurist Brees, he wrote in his book that no feature of the government of USA has awakened so much curiosity in the European mind. So it means the European mind uh, is always curious about the role of the Supreme Court in American system, and the European mind is not more more curious than the Supreme Court of any other organ of the state. And he also tells that the discussion regarding the powers, functions, and duties of the Supreme Court are as much discussed as uh, not of any other institution or organ of the state. किसी और स्टेट आर्गन ऑफ द स्टेट के बारे में इतनी डिस्कशन कभी भी नहीं हुई जितनी सुप्रीम कोर्ट के बारे में हुई है और होती है, और जितनी पजीराई इसको मिल रही है, सुप्रीम कोर्ट को मिली है in European mind, in the jurists, in the circles of the jurists and legal professionals, किसी और अदारे या किसी और ऑर्गन ऑफ द स्टेट को नहीं मिली। और ना ही जितने जो ड्यूटीज सुप्रीम कोर्ट को असाइन की गई हैं और जितनी और सुप्रीम कोर्ट फंक्शन जो है डिस्चार्ज करती है टू गार्ड दी कॉन्स्टिट्यूशन या पहले टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, तो उसको भी मैनी टाइम्स मिसअंडरस्टूड किया गया है
कि समटाइम्स जूरिस्ट ये उनकी ओपिनियन ये होती है या दे बिलीव दैट दिस इज नॉट in the domain of the Supreme Court, but when the decision comes, so the decision comes otherwise the opinion of the legal professionals and jurists. So जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इसका रोल जो है इसको आप लिमिटेड नहीं कर सकते जस्ट in its original jurisdiction and appellate jurisdiction. The Supreme Court performs its functions beyond these two limited functions assigned by the Constitution of United States of America to the Supreme Court. As a protector of federation, generally, in a federation, the powers are divided between the federal government and the states. And in a federation, there is always the possibility of dispute. According to Dr. Munro, without the provisions of the Supreme Court, the American constitutional system would have become a hydra-headed monarchy. There were 48 states in USA when Munro remarked this war of 48 rival sovereign entities. It would have never gained that strengthened regularity of operation which it possesses today. By working out the doctrine of implied power, the Supreme Court has conferred wide powers on the Congress. The words of the Supreme Court in the case of Maryland versus McCulloch, let the end be legitimate, let it be within the scope of the Constitution, and means which are appropriate, which are plainly adapted to that end, and which are not prohibited by consistent with the letter and spirit of the Constitution are constitutional, are really historic words. तो इसमें जो है अक्सर ये हमें बता रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है एक फेडरेशन है ऑफ 50 states nowadays. So, when the Constitution was framed, that federation or union was of 13 states. तो जो author है वो ये कह रहा है कि जो powers and functions जो हैं वो divided हैं between the federal government and states. तो किसी भी फेडरेशन के अंदर देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड स्टेट्स जस्ट लाइक इन पाकिस्तान in recent days you have witnessed the conflict between federal government and provincial government on implementing the lockdown. So the federal government was of the view that the lockdown is not a best option during the coronavirus pandemic. But the Sindh government was of the view that there must be a strict lockdown to limit the spread of coronavirus in the province. तो ये ऐसे जो डिस्प्यूट्स होते हैं ये अराइज हो जाते हैं फेडरेशन के अंदर. तो फिर जो क्या हुआ अल्टीमेटली जो है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान या फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसने ये कह के अपनी जान छुड़वाई कि क्योंकि आफ्टर 18th amendment the powers are vested to the provinces, जो या कह लें कि the powers are devolved to the provinces. Now the provinces are at liberty to make their own decisions regarding coronavirus pandemic. तो ये ऐसे जो कन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं किसी भी फेडरेशन के अंदर, स्पेशली इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका,
तो अगर ये सॉल्व ना हो, दे आर solved in the Supreme Court of the United States of America if they are brought in a specific suit or a case in Supreme Court. The Supreme Court of United States of America cannot take a suo motu notice just like in Pakistan. The Supreme Court can take a suo motu notice under Article 184(3) of Constitution of Pakistan in public interest matters. But in United States of America, there is no such powers are granted to the Supreme Court. The Supreme Court only can declare a law invalid, invalid on the basis of in violation of the Constitution of the United States of America if that is challenged in Supreme Court in suit. तो इसी तरह जो एक आथर है म्यूनरो, उसने रिमार्क दिए थे कि जब 48 स्टेट्स की यूनियन थी उस वक्त उसके रिमार्क्स आए थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है इसकी मौजूदगी के बगैर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जो है ये तबाह हो सकता था। अगर सुप्रीम कोर्ट मौजूद ना होती to solve the issues between the federal government and states। तो उसके बाद ये है एक और केस डिसाइड हुआ इन सुप्रीम कोर्ट और उसमें जो तहरीर किया गया these are the guidelines for Supreme Court in future cases। उसमें मैरीलैंड वर्सेस मैककुलोज केस है, इसमें ये बताया गया लेट द एंड बी लेजिटिमेट। तो जितनी मर्जी कोई भी कंट्रोवर्सी अराइज हो जाए, सुप्रीम कोर्ट को ये गाइडलाइन दी गई है इस केस के अंदर कि द सुप्रीम कोर्ट मस्ट डिसाइड दैट कंट्रोवर्सी एंड दैट कंट्रोवर्सी must be decided and the people should think that that is legitimate। यानी कानूनी होनी चाहिए, उसका सोल्यूशन कानूनी होना चाहिए। ये ना हो कि उसका सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई सोल्यूशन तो दे दे लेकिन बाद में लोग कहें कि ये कानून से हटकर कोई फैसला आ गया है। लेट इट बी within the scope of the within the scope of the constitution and means which are appropriate। and जो भी कंट्रोवर्सी जो है चैलेंज की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट को उसका फैसला जो है विद इन द स्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ही देना है। बियॉन्ड द स्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती। एंड दैट मस्ट बी अप्रोप्रिएट, तो अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। और उसके बाद ये कहा गया है विच आर नॉट प्रोहिबिटेड बट कंसिस्टेंट विद द लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो उसका जो फैसला दिया जाएगा एनी कंट्रोवर्सी बिटवीन स्टेट एंड फेडरल गवर्नमेंट, तो वो एक तो होना चाहिए लेजिटिमेट, कानूनी होना चाहिए, विद इन द स्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। और उसके बाद ये बताया गया है कि वो उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोहिबिट ना किया गया हो और दैट डिसीजन मस्ट बी कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स। तो उसको कंसिस्टेंट यानी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स या होना चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, प्रोहिबिट नहीं किया गया होना चाहिए। तो ये वो फिर ये कह रहे हैं कि इट इज बिकॉज ऑफ द a liberal interpretation by Supreme Court that the federal structure devised in the 18th century to satisfy the requirements of 13 states with a small population living in pastoral agricultural age is equally suitable to the needs of the most industrialized country consisting of 50 states today।
Without a liberal interpretation by the Supreme Court, the US federalism might have failed in the time of growing industrialization and centralism. तो ये कह रहे हैं कि it is because of the liberal interpretation by the Supreme Court in any controversies arises between the federal government and states कि ये जो फेडरल फेडरेशन है वो आज भी उसी तरह चल रही है और सुप्रीम कोर्ट जो है उसने उस वक्त जब ये 13 स्टेट्स की यूनियन थी एंड द इकोनॉमी वाज बेस्ड अपॉन एग्रीकल्चर, तो उस वक्त भी जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले दिए वो फैसले नीड ऑफ द टाइम जो है उसको मीट करते थे। और उसी लिबरल इंटरप्रिटेशन की वजह से आज जब ये 50 स्टेट्स की यूनियन है और बहुत ज़्यादा आबादी हो चुकी है और एंड द इकोनॉमी इज बेस्ड अपॉन इंडस्ट्रियलाइजेशन, आज भी सुप्रीम कोर्ट जो है उसको मीट कर रही है ट्रेंड्स ऑफ द सोसाइटी एंड नीड्स ऑफ द टाइम। तो सुप्रीम कोर्ट ये नहीं हुआ कि जब ये इकानमी 1800 के अंदर जो आज से 200 साल 300 साल पहले लोग बहुत आबादी बहुत थोड़ी थी, इकानमी एग्रीकल्चर बेस्ड थी, तो उस वक्त उसी वक्त पे यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है स्टक नहीं हुई, ना ही सुप्रीम कोर्ट का माइंड जो है वही पुराना माइंड है कि आज भी वो उसी माइंड के तहत फैसले नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट according to the time, or you can say with the passage of time, changes its mind and declare the decisions according to the trends of the changing trends of the society. So that's why the Federation of the United States of America is intact. वो कायम दायम है, टूटी नहीं है। और उसके बाद है सेवियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट कैन डिक्लेयर नल एंड वॉइड अ लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर और एनी ऑर्डर इशूड बाय द एग्जीक्यूटिव organ in the United States. If it is repugnant to the Constitution, its power of judicial review has protected the Constitution from being violated and has checkmated the monarchical ambitions of the president and the democratic recklessness of the Congress. Hence, it has been rightly considered as the empire of the constitutional conflicts. तो राइटर यहाँ पे कहता है कि सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर नल एंड वॉइड एनी लॉ passed by a legislature which is in violation of the constitution and any executive order issued by the executive that is also in violation of the constitution and fundamental rights of the people, that legislation made by the legislature which is in violation or against the constitution, and any executive order issued by the executive, the president, which is in violation of the constitution and fundamental rights of the people, can be declared null and void by the Supreme Court if challenged in a specific suit in the court. Its power of judicial review has protected the Constitution from being violated and has checkmated the monarchical ambitions of the President and the democratic recklessness of the Congress. तो इसके बाद ये इसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने के पास जो पावर्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू है उसने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट होने से बचाया है। और उसके बाद जो प्रेसिडेंट है उसकी जो एम्बिशन होती हैं टू बिकम ए मोनार्क जस्ट लाइक अ मोनार्क ऑफ सऊदी अरेबिया, के सारे इख्तियारात अपने पास लेने की जो एम्बिशन होती हैं उसके ऊपर एक किस्म का चेक एंड बैलेंस जो है वो कायम किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने।
और उसके बाद जो लेजिस्लेचर है दी कांग्रेस, तो कांग्रेस की भी यही एम्बिशन होती हैं कि हम एक इलेक्टेड बॉडी है या इलेक्टेड ऑर्गन है बाय द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, so that's why we can make any law and there is no check upon this. तो ये उनके जो ambitions हैं या उनकी ये जो सोच है उसके ऊपर जो चेक एंड बैलेंस है जो प्रोवाइड किया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इन द फॉर्म ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अभी मैंने अनम्यूट कर दिया, आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अगर और पढ़ना चाहते हैं तो भी बता दें। आप अपने तो सर पढ़ना नहीं हो जी सर इतना ही काफी है आज। सर एक सजेशन सर मेरे, जी जी सजेशन मोस्ट वेलकम। सर ये जो रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है सर, देखें तो सर ये बुक पे जो इसकी वर्डिंग है ना वो थोड़ी उसमें कम्प्लेक्सिटी है सर, थोड़ा सा ना खुले अल्फाजों में समझाया करें ताकि इससे है ना अच्छी तरह समझ आ जाए। ज्यादा रीडिंग की बजाय ना आप चाहे थोड़ा पढ़ा लिया करें लेकिन समझाया अच्छी तरह करें सर। जी ठीक, अरे वाह जी जी ठीक। बाबू सही नहीं मुँह पे था। सही आता पे है। यार हमारे ऊपर ना एक जो सिलेबस को कवर करने का भी प्रेशर होता है। तो इसमें रोल ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो वर्डिंग है वो ऐसा इतनी डिफिकल्ट नहीं है जितनी आप तो समझ रहे हैं। इसमें सिर्फ बताया गया है कि जो कांग्रेस सॉरी सुप्रीम कोर्ट में हमने पढ़ी है ओरिजिनल एंड जुरिस्डिक्शन, तो अगर आप वही पढ़ के ये समझ लें कि बस यही जो रोल है, यही पावर्स हैं, यही फंक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, तो ये दैट इज नॉट तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट की पावर्स एंड फंक्शंस आर बियॉन्ड द अपीलेट एंड ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। तो उससे भी बियॉन्ड जाके सुप्रीम कोर्ट अपने फंक्शन जो है उसको डिस्चार्ज करती है। तो इसी तरह फिर वो एक ऑथर है उनका नाम ब्रेस है, तो वो ये कह रहे हैं कि यूएसए के अंदर कोई भी कोई फीचर स्टेट है या पैनल ऑफ के बारे में इतनी ज्यादा डिस्कशन यूएस ने आज तक नहीं की, ना ही होगी कि ये इसकी पावर क्या है, इसके फंक्शन क्या है। अब जैसा कि आजकल आप पाकिस्तान के अंदर जो हर 6 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा केस आ जाता है जिसकी काफी देर और हम लोग जो है बीइंग लॉ स्टूडेंट और मैं भी और हमें हमारे साथी और भी उसको अक्सर डिस्कस करते रहते हैं। तो स्टेट के और भी आर्गन है तो उनके बारे में इतनी डिस्कशन नहीं होती यूएसए के अंदर जितनी सुप्रीम कोर्ट के बारे में और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में और उसके बारे में। तो यहाँ पे एक यूरोपियन माइंड का वर्ड यूज हुआ है। ये इसलिए है कि यूरोपियन जो है या यू कैन से द ब्रिटिश पीपल जो है दे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका after Columbus when he discovered the United States of America। तो वहाँ पे जाके उन्होंने आबादकारी की और उसको जाके वहाँ पे सिस्टम दिया। ब्रिटिश जो है दे वर यूरोपियन, तो फिर यूरोपियन माइंड या यूरोपियन जो है उन्होंने वो अमेरिकन सिस्टम के बारे में बहुत ही ज्यादा क्यूरियस रहे हैं और आज भी क्यूरियस हैं।
आप अगर इसको स्टडी करेंगे और पढ़ेंगे तो आप भी ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे तो आप भी इसके बारे में क्यूरियस हो जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के एक्चुअल वो है वो है क्या है। उसमें ये हम टाइम जो है डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है उनमें सुप्रीम कोर्ट हम टाइम ये फील होता है कि वो अपने डिसीजन जो देती है वो बियॉन्ड उसके जाके सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देती है जो आप लोग इसमें देखेंगे या जो आपने पढ़ा हुआ होता है कि ये इसकी पावर एंड फंक्शन है। उसके बाद सर कि जितनी उसकी पावर एंड फंक्शन। सर आवाज ही नहीं आ रही सर आपकी। हाँ जी सर आवाज ही नहीं आ रही, बहुत थोड़ी आवाज आ रही सर आपकी। भाई ये नुमान असलम साहब आपके वन से ही ये इशू है, बाकी सारे स्टूडेंट तो आप अपना सिस्टम ठीक कर लें। नहीं सर एक्चुअली वाकई नहीं आ रही सर, बहुत कम आवाज आ रही है आपकी। यार किसी और ने तो मुझे ये बात नहीं की। तो अब आई है ना सर, आपने बोला तो अब आई है। सर इन्हों अपने कोल बुला लो। हाँ जी इन्हों अपने कोल बुला लो। बुला लो सर, नाश्ता भी करवाया है। चार बनने का अशरफ यार नाश्ता भी नहीं किया सर, और सुबह से सर आपका लेक्चर सर ले रहे हैं। चल झूठी नहीं आँख खुलती नहीं है सर, आपका दीदार हुआ फौरन सर। बाबू अशरफ उसके बाद सर एक और बात सर, क्वेश्चन है सर। सर ये जो इस टॉपिक में ना सर बहुत दर्द वाले अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं सर, जैसे ये हाइड्रा हेडेड मोनोस्ट्रोसिटी, ये बड़े दर्द वाले अल्फाज। ये तो बड़ी महसूस बंदा बनो यार, रिकॉर्डिंग हो रही है साथ साथ। हाँ मनसो ये तो दर्द महसूस करने की बात है, जिसको महसूस हो जाए भाई। दर्द खांदा है मलक तसव्वुर। जनाब जमीर साहिब लेक्चर का टाइम भी ऑफ हो गया सर अब तो। बाबू थोड़ा हंस के तू आता है सर आप शुगर भी नहीं लगाते सर क्लास। नेक्स्ट हमारा लेक्चर 12 बजे होगा, तो उसके अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक सेवियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द जुडिशियल रिव्यू, उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, बट सीरियस क्वेश्चन प्लीज। सर यही जो लफ्ज है ना सर, हाइड्रा हेडेड मोनोस्ट्रोसिटी, इसका थोड़ा सा मतलब बता दो। I shall be very thankful to you. Kindly grant me leave for one day. तसव्वुर जी हसन वो दर्द खांदा है तो खांदा है यार मेरी बात ज्यादा एक दफा प्रॉब्लम वो ज्यादा जब